Hello everyone, welcome back to my channel once again. So today we are back with another topic and this is a case study about the pepper moth. ठीक है, so all of you please take out your notebook so that you can note down the important points. तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, हम फटाफट से क्विकली कवर अप कर लेंगे, ठीक है. So basically in the last video we discussed about the natural selection. ठीक है, हमने नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था. आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना. तो अब इसका प्रूफ क्या है, क्या एविडेंस है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एविडेंस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, दैट इज द पेपर मॉथ केस स्टडी ओनली. ठीक है, तो फटाफट से एक क्विकली एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. इसको देखना, ध्यान से देखना और फिर इसी को हम डिस्कस करेंगे. Is a species of moth found in England. There are two variations of color in the species. Some moths are white with dark speckles, and some moths are dark with light speckles. The peppered moths live in environments with light-colored trees, like birch trees. Which moth do you think has an advantage in this environment? Can you find the moths? There's one more, do you see it? The light-colored moths had an advantage for survival. Their color helped them to blend into their environment and hide from hungry predators like birds. The dark-colored trait was a disadvantage. Moths with this trait were more easily spotted by predators and had a lower chance of survival. Since the light-colored trait had an advantage for survival, it was more commonly seen in the population. This was due to natural selection. Individuals who are best suited for an environment survive longer, reproduce more times, and pass on their genes. Natural selection over many generations can cause noticeable evolutionary changes in a species, and the peppered moth is the perfect example. In the 1800s, the Industrial Revolution took place. Manual labor was taken over by machinery. Factories began to produce goods. These factories were powered by coal. The burning of coal released a lot of pollution. Dark clouds of soot and ash lingered in the air and even settled on the trees. Over time, the once light-colored trees were covered in a layer of dark soot. Which color variation had the advantage after industrialization changed the environment? The dark-colored moths now had the advantage. They were able to blend well into the soiled trees, while the light-colored variation stood out. Light-colored moths were more easily spotted by predators and had a lower chance of survival. They reproduced less often, and the frequency of this trait decreased over time. The dark-colored moths increased in frequency after many successful generations of survival and reproduction. But this story has one more plot twist. It didn't take long for people to realize that air pollution was a major problem. Laws were put into place and factories began to reduce their emissions. The skies were once again clear, and the trees as well returned to their natural light color. As a result, over time, the dark moths decreased in frequency, and the light moths became the more common variation once again. This is evolution by natural selection. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो ये केस स्टडी आप लोगों के एनसीईआरटी में भी दे रखा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, पेपर्ड मॉथ केस स्टडी. तो बेसिकली हुआ क्या था, इफ यू सी लाइक द यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उससे पहले की बात है. उससे पहले जब सैंपल्स लिए गए इन द ईयर 1850s, ठीक है, 1850 के टाइम पे जब सैंपल्स लिया गया, मॉथ का कलर मोस्टली मेजॉरिटी मॉथ का कलर होता था वाइट. ठीक है, वाइट कलर. और वो चिपके रहते थे किससे, ट्रीज से, जो कि कवर होते थे लाइकन से. ट्रीज के ऊपर लाइकन पूरे चिपके होते थे और उनके ऊपर पेपर मॉथ चिपके होते थे. बिकॉज उस टाइम पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता था. तो वी नो दैट लाइकन आर फाउंड इन क्लीन एनवायरमेंट. ठीक है, जहाँ पे सफाई है वहीं पे आपको लाइसेंस या फिर लाइकन्स मिलेंगे. ठीक है, तो लाइकन्स पूरे ट्रीज को कवर कर लेते थे और उसके ऊपर जो मॉथ का कलर होता था वो होता था वाइट. Because it helped to camouflage it with the trees so that they can protect themselves from the predators. Clear? Now उसके बाद जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, पोल्यूशन होने लग गया, राइट. इंडस्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस निकलने लग गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर गैसेस निकलने लग गए. तो उससे क्या हुआ, जिस जैसे जैसे पोल्यूशन हुआ, लाइकन्स खत्म हो गए. बिकॉज लाइकन्स कैन नॉट सर्वाइव इन अ पॉल्यूटेड एरिया. वो खत्म हो गए, मर गए. और धीरे धीरे उनकी जो कोटिंग थी ट्रीज के ऊपर से वो भी रिमूव हो गई. एंड
ट्रीज के ऊपर अब पॉल्यूटेड जो सूट होता है, मतलब धुआं जो होता है, डस्ट सूट जो होता है, उसकी कोटिंग लगने शुरू हो गई। और ट्रीज का जो कलर हो गया, ट्री ट्रंक्स का कलर, वो भी थोड़ा थोड़ा डार्कन अप होने लग गया। ठीक है, जो पहले लाइट ब्राउन हुआ करता था अब वो डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, अब अगर व्हाइट मॉथ डार्क कलर ट्रीज के ऊपर बैठेंगे तो वो क्लियरली विजिबल होंगे, राइट, क्लियरली विजिबल होंगे। तो अ, और वो बर्ड्स जो है, बर्ड्स उनको बहुत ही इजीली उनको खा जाएंगे, करेक्ट। तो इसलिए देखा गया कि जो ब्लैक कलर के मॉथ्स हुआ करते थे, मतलब ब्लैक कलर के मॉथ्स पहले से ही थे बट उनका जो पॉपुलेशन था वो कम था। सो हियर यू कैन सी, पहले डार्क लाइट वाइट कलर के मॉथ्स जो है उनका पॉपुलेशन ज्यादा था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लैक कलर के जो मॉथ्स थे, डार्क ब्राउन कलर के जो मॉथ्स थे, उनका पॉपुलेशन कम था। धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, डार्क कलर के मॉथ्स की पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई और लाइट कलर के मौत की पॉपुलेशन डिक्रीज होती गई। ठीक है, और 1950 1920s में जब सैंपल कलेक्ट किया गया तब देखा गया कि डार्क कलर के जो मॉथ्स है वो सबसे मेजॉरिटी में आ चुके हैं अब, और लाइट कलर के मॉथ्स की पॉपुलेशन काफी डिक्रीज हो गई है। ये डेटा लिया था 90 1850s में, फर्स्ट वाला डेटा। नेक्स्ट डेटा लिया 1920s में। ठीक है, तो आप देख सकते हो, लाइट एंड डार्क दोनों ही मॉथ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो गए, नहीं, ऐसा नहीं कि व्हाइट मॉथ्स पूरी तरह खत्म हो गए, नो, वो दे वर स्टिल देयर, दे वर स्टिल एग्जिस्टिंग, बट उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई धीरे धीरे। ठीक है, पहले व्हाइट्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, डार्क्स की कम हुआ करती थी, बाद में व्हाइट्स की कम हो गई और डार्क की ज्यादा हो गई। क्लियर? So this is a very good example case study of the natural selection। क्यों यहाँ पे, वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इट इज क्रिएटेड बाय मैन मेड, राइट, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, सब कुछ जो भी है हमने, हम ही ने धुआं छोड़ा है। बट ये जो पोल्यूशन था एयर में, इसकी वजह से मॉथ्स का सिलेक्शन हुआ, किस कलर के मॉथ्स ज्यादा होंगे इसका सिलेक्शन हुआ। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ natural selection। Clear? I hope this is clear to you. So that's all for this video. This was a very small topic. All right. So next video we are going to discuss about the different causes of the variation. तो काफी important होगा वो, उसको जरूर watch करना। All right. So take care. Have a nice day. Bye bye.